اکتوبر میں آپ میں سے بہت سی ساتھی جو خواتین ہیں، دیہی رہنما خواتین پاکستان سے، تقریباً 3,000 کے قریب خواتین نے اکتوبر میں لوک ورثہ اسلام آباد کے اندر اپنی 16ویں سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کے اندر آپ لوگوں نے مختلف طرح کے جو مسائل تھے خواتین کے، اس کے اوپر 4 مختلف موضوعات کے اوپر بہت تفصیلی بات چیت کی، جس کے اندر اگر ہم ان موضوعات کی سمری کو دیکھیں تو ایک پہلا موضوع ہم نے دیکھا تھا کہ لڑکیوں کے لیے جو شناخت کا حق ہے، یعنی ان کی برتھ کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، اس کو بہت اجاگر کیا گیا پہلے دن کے سیشن میں۔ دوسرے دن ہم نے خواتین کے غذائیت صحت اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلقہ جو فیصلہ سازی ہے، اس پہ خواتین کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت تفصیلی سیشن کا انعقاد ہوا، تربیت ہوئی، اور آپ سب لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اس میں اپنی رائے دی۔ تیسرے سیشن میں بچپن کی شادیوں سے تحفظ اور لڑکیوں کی شادی کی جو کم از کم عمر ہے وہ پورے پاکستان میں 18 سال کرنے کے لیے گفتگو ہوئی۔ جی یہ مائک کہاں سے آنے واجد، پلیز اگر ان کا مائک ہماری طرف سے کنٹرول میں تو اس کو میڈم بند یہ کر دیتے ہیں نسرین انور کے نام سے ہے، یہ اس کو میوٹ بھی کر رہا ہوں بھی ہو رہا۔ پلیز اپنا مائک آف کر دیجئے، لیفٹ سائڈ پہ کارنر پہ نچلے سلے پہ آپ کا مائک موجود ہے، پلیز اس کو میوٹ کر دیں، بہت شکریہ۔ اور چوتھا ہمارا سیشن تھا خواتین ووٹرز کی الیکشن میں غیر حاضری اور خواتین کے پرامن طریقے سے ووٹ ڈالنے کے حقوق کے حوالے سے۔ یہ مختلف ہم نے 5 سیشن کیے تھے، اس سے پہلے ابتدائی تھا ویلکم میں، اور پھر اس کا اختتامی سیشن ہوا تھا۔ سو یہ ایک بڑا اکٹھ ہوتا ہے جس میں پاکستان بھر کی خواتین اپنے اپنے مسائل کو اجاگر کرتی ہیں، اور اس کے پھر تسلسل کو آگے لے کے چلتے ہوئے جو مسائل وہاں پہ رہ جاتے ہیں، ایک تو اس کی قرارداد کی پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے آپ سب تئی رہنما خواتین اپنے اپنے ضلعوں پہ قرارداد کے جو نکات ہیں اس پہ حکمت عملی طے کریں گی اور پھر اس پہ کام کریں گی، اور دوسرا ہر ہفتے ہم اپنے علاقے کے مسائل کو لے کے آتے ہیں، اس پہ بات کرتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مس رضیہ محسود صاحبہ، جن کا تعلق جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان سے ہے، خیبر پختونخوا کے ایک علاقے سے، اور یہ چیئر پرسن ہے رضیہ محسود ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پہلی اپنے خیبر پختونخوا کے اندر پہلی خاتون صحافی ہیں، اور اس کے ساتھ بہت اہم بات یہ ہے کہ شیریں پلیز آپ اپنا مائک آف کریں۔ اور یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر جنوبی وزیرستان کے حوالے سے جو کمیشن برائے تحفظ خواتین ہے، اس کی چیئر پرسن بھی ہیں۔ تو آج یہ ہمارے ساتھ جس موضوع پہ بات کریں گی وہ موضوع ہے فیمیلز ایجوکیشن ان ساؤتھ وزیرستان چیلنجز اینڈ وے فارورڈ، اور اس کا 3 بہت اہم پائیدار ترقی کی جو اہداف ہیں، ایس ڈی جی ٹارگٹ نمبر 4، ایس ڈی جی 5 اینڈ نمبر 10، یعنی اکوالٹی ایجوکیشن، جینڈر اکوالٹی اینڈ ریڈیوسڈ ان اکوالٹیز، یعنی جو صنفی مساوات ہے اس کو عام کرنے، غیر عدم مساوات میں کمی جو ہے اس کو فروغ کے لیے آج کا جو گفتگو اس میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ اگر آپ اردو میں اپنے ٹاپک کو دیکھنا چاہیں تو جنوبی وزیرستان میں خواتین کی تعلیم، مسائل اور لائحہ عمل پہ ہم بات کریں گے۔ اور ٹاپک آپ کے سامنے، اور ہم تھوڑا سا ہم آپ اس ایجنڈے کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں۔ ایجنڈا آپ کے سامنے آج کے ویبینار کے اندر اسپیکر کے تعارف تک ہم پہنچے ہیں۔ ایک گزارش جس کو ہر ہفتے ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اپنے نام سے پہلے پلیز اپنے ضلع کا نام لکھیے جب آپ ری نیم ہو کے میٹنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ سوالات اپنے پاس نوٹ کریں، بے شک چیٹ باکس میں لکھیں تاکہ ان کو جوابات دیے جا سکیں۔ اور رضیہ محسود صاحبہ اپنے ساؤتھ وزیرستان کے حوالے سے بہت اہم معلومات ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گی، خاص طور پہ تعلیم کے مسائل ان کو کیا ہے، اور اس کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گی۔ اور تجاویز اور سفارشات ہو سکتی ہیں آپ سب لوگوں کی طرف سے بھی، اور رضیہ صاحبہ کی طرف سے بھی جو ہماری اسپیکر ہیں۔ اور آخر میں ہم ایک گروپ تصویر بنائیں گے، اور پھر اپنی جو فالو اپ کے ساتھ اگلے ہفتے کے لیے تیاری شروع کریں گے، اور خدا حافظ کہیں گے ایک دوسرے کو۔ ایک بار ہم ذرا واپس چلے چلتے ہیں کہ جو آج کا ویبینار ہے وہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے پائیدار ترقی کے 3 اہداف کے ساتھ۔ پہلا ہے نمبر 4 یعنی معیاری تعلیم، اور اس کا بھی 4.1 مفت پرائمری اور سیکنڈری تعلیم۔ یہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جب میں اس ویبینار کی پریپریشن کر رہی تھی تو مجھے یہ دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ جو
साउथ वजीरिस्तान के एरियाज हैं, वहां पे खवातीन की और मर्दों की बोथ की जो लिटरेसी रेट है उनका, वो 31.3% है, जो कि बहुत कम है। और इसलिए जो खास तौर पे पायदार तरक्की का हदफ नंबर 4 है, उसके जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं उस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की, या उस पे उनके साथ अलाइन करके अपनी सरगर्मियों को आगे लेके चलने की जरूरत होगी। 4.2 कहता है मयारी प्री तालीम, यानी प्राइमरी स्कूल में दाखिले से पहले जो बच्चे की तरबियत की जरूरत होती है, प्री स्कूलिंग की, उस तक यकसां रसाई हो तमाम बच्चे और बच्चियों को, काबिल इस्तेता तकनीकी पेशा वराना और आला तालीम तक रसाई हो, तालीम में इम्तियाजी सलूक को कम किया जाए। SDG नंबर 5, चूंकि हम बात ही लड़कियों की कर रहे हैं और बच्चियों की जिनकी तालीम के मसाइल, तो अगर मर्दों के लिए ज्यादा, बच्चों की तालीम के लिए मसाइल ज्यादा वसाइल मौजूद हैं लेकिन लड़कियों की तालीम के लिए नहीं है, तो उस पर बात करने से हम पाकिस्तान के अंदर सिर्फी बराबरी के फरोग के लिए काम कर रहे होंगे। और उसके ये नीचे आपके सामने चार अहदाफ हैं, जिसके साथ बहुत गहरा तल्लक बनेगा आज की इस गुफ्तगू का। और जब हम बच्चियों के लिए ज्यादा वसाइल मुख्तस करने की, उनको तालीम के मौके देने की बात करेंगे, तो उसकी बुनियाद पे माशरे के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं वो कम होंगी, यानी मुसावात का जो माहौल है वो बनेगा। और जो हम फर्क रखते हैं मुख्तलिफ वसाइल को मुख्तस करने में भी, मौके देने में भी, और हौसला अफजाई करने में भी, तो वो कम होएगा। जी, मैं दावत देना चाहूंगी रजिया महसूद साहिबा को, कि वो आज हमें अपने काम के बारे में, खासतौर पे साउथ वजीरिस्तान के अंदर जो बहुत अहम वो काम कर रही हैं, पहली खातून सहाफ़ी होने की हैसियत से, और अपने एक इदारे को भी चला रही हैं। और जनूबी वजीरिस्तान में खवातीन का जो कमीशन है, जो जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन कहते हैं, उसमें साउथ वजीरिस्तान की वो चेयरपर्सन है। तो बहुत अहम से जिम्मेदारियां आप सर अंजाम दे रही हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज के वेबिनार में हम आपका जो काम का एक्सपीरियंस उसको जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ रजिया। आप आए और अपने जो सॉरी आपका जो कैमरा है उसको ऑन कीजिए, और इसके बाद सारी गुफ्तगू हमारी आपके साथ ही चलेगी। ये कैमरा ऑन नहीं है। जी जी, कैमरा अब ऑन ऑन नहीं है। है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं नाहिद साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और खुदा की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तो उन्होंने हमारे वजीरिस्तान जैसे एरिया में जो हम काम कर रहे हैं उसको भी आज के वेबिनार में मौका दिया कि हम वजीरिस्तान क्या है, वजीरिस्तान कैसा इलाका है। और वजीरिस्तान को अक्सर लोग अफगानिस्तान समझते हैं, जब हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये अफगानिस्तान का इलाका है। अक्सर लोग रजिया वजीरिस्तान से थोड़ा सा अगर कहते माइक को हैं। करीब करें। सॉरी। हाँ, जी क्योंकि आवाज वो से। थोड़ी सी ना आवाज दरमियान से ब्रेक हो रही है, पूरी समझ नहीं आई बात, इसलिए मैंने कहा। जी अब मेरी आवाज क्लियर है। हाँ, आप बहुत क्लियर है, शुक्रिया। अच्छा, तो मैं पौधा की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं वजीरिस्तान और वजीरिस्तान में स्पेशल जो फीमेल एजुकेशन है उसके हवाले से अपने ख्याल शेयर करूँ, ग्राउंड को रियलिटीज हैं उसके बाद। मेरा नाम जैसा कि नाइब साहिबा ने बताया रज़िया मसूद है, और मेरा ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से सिल्लद से है। मैंने मास्टर किया है, डबल मास्टर किया है उर्दू में भी और मास कम्युनिकेशन में भी। और मैं वजीरिस्तान से पहली खातून सहाफ़ी भी हूँ, और इसके साथ सोशल वर्क भी करती हूँ। अपना एक इदारा भी अभी रिसेंटली मैंने रजिस्टर करवाया है रज़िया मसूद डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से। जी और मैं कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी हूँ। जी सबसे पहले तो मैं आपको जो है वजीरिस्तान के हवाले से बताऊं कि वजीरिस्तान जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ पे है। अ, इसके हवाले से मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे आप लोगों को ये बताऊं, क्योंकि अक्सर लोग वजीरिस्तान का नाम सुनते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वजीरिस्तान असल में कहाँ पे है। वजीरिस्तान जो है ये खैबर पख्तूनख्वा साउथ रीजन जनूबी जो अजला है वहाँ पे है। जरा इस्माइल खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके साथ टांग, उससे आगे चंडोला आता है, फिर हमारा वजीरिस्तान शुरू हो जाता है जनूबी वजीरिस्तान। असल में वजीरिस्तान जो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक को नॉर्थ वजीरिस्तान कहा जाता है और दूसरे को साउथ वजीरिस्तान कहा जाता है। नॉर्थ वजीरिस्तान एक अलग जो है डिस्ट्रिक्ट है, और साउथ वजीरिस्तान अलग डिस्ट्रिक्ट है। नॉर्थ वजीरिस्तान में जो ट्राइब रहते हैं वो दावर है, वल्स
وزیر ہیں یہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جبکہ ساؤتھ وزیرستان پھر مزید دو حصوں میں جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اپر ساؤتھ وزیرستان اور لوور ساؤتھ وزیرستان۔ یہ پہلے ایک ضلع تھا جنوبی وزیرستان، لیکن اب جو ہے یہ دو ضلعوں پہ تقسیم ہو گیا، اپر اور لوور۔ اپر وزیرستان میں محسود بیلٹ محسود جو ہے محسود قبائل اور برکی یہ آباد ہیں، جبکہ لوور وزیرستان میں ہمارے وزیر بھائی جو ہیں وزیر سلیمان خیل یہ آباد ہیں۔ وزیرستان 2008 کے بعد یہاں پہ ملٹری آپریشن ہوئے، ہمارے لوگ مائگریٹ ہوئے، ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ ہمارے جو لوگ تھے وہ ٹانگ دیا گئے تھے، دہشت گردی سے ہمارا علاقہ جو ہے کافی افیکٹ ہوا۔ اس وقت کی جو خبریں نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ جو سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی، صرف دہشت گردی، اور باقی خواتین کے حوالے سے ہماری جو آواز تھی وہ بالکل خاموش تھی، خواتین کے جو مسائل تھے وہ بالکل خاموش تھے، کیونکہ ہمارے وزیرستان سے کوئی فیمیل نہیں تھی میڈیا کے سائڈ پہ، کوئی فیمیل رپورٹر نہیں تھی، اور دوسرا ہمارا کلچر بھی ایسا تھا کہ جو میل صحافی تھے وہ فیمیل تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے تھے کہ وہ ان کی آواز جو ہے وہ آگے لے کر جائے، یہ ایک خلا تھا۔ اور دوسرا جو ہمارے وزیرستان میں ملٹری آپریشن ہوئے، ہمارے لوگ مائگریٹ ہوئے، اس کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے جتنے بھی وزیرستان کے لوگ ہیں وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے، لائک پشاور جاتے تھے، اسلام آباد جاتے تھے، جب وہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے تھے کہ ہم وزیرستان سے ہمارا تعلق ہے، یا ان کا کہنا تھی کہیں پہ جو چیک کیا جاتا تھا کہ ایسے یہ وزیرستان کے ہے تو مخصوص نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اکثر ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ایڈمیشن بھی نہیں دیتی تھی، کیونکہ حالات ایسے بنے تھے، پروفائلنگ اس طریقے سے ہوئی تھی، حالانکہ ہم دیکھیں ابھی ہر جگہ پہ پوری دنیا میں اس طرح کے حالات آتے ہیں، اس طرح کی دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو عام سٹیزن ہیں ان کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا۔ ہم جو ہے رضیہ اگر پکچر اس کو کبھی سوری میرے کیمرہ آف سامنے کرنے سے، گراؤنڈ میں پھر جب ہم 2014 Yes. میں کہنے جی لگی تھی اگر کیمرہ تو کیمرہ بالکل میں آف، نے وہ کیا ہوا ہے، آپ کو نظر آ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ رضیہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، جی اگر جی آپ کیمرہ بے شک آف کر دیں، اگر مسئلہ کوئی انٹرنیٹ کی ایشو کا آ رہا ہے تو بات جاری رکھیں تاکہ ہم سن پائیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، تھوڑا سا مائک قریب رکھیں۔ جی مائک تو بالکل منہ کے ساتھ ہی لگایا ہوا ہے، اب ٹھیک ہے، شاید نیٹ اب کا ٹھیک ہے، بالکل شاید اب ٹھیک شاید ہے، نیٹ کا ایشو ہو۔ شکریہ۔ جی تو میں وزیرستان کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ ملٹری جی جی آپریشن کے بعد ہم کافی افیکٹ ہوئے، ہماری خواتین کی کوئی آواز نہیں تھی، کوئی نمائندگی نہیں تھی، اور پھر جس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، کیونکہ ہم پاکستان کے ہی سٹیزن ہیں، پاکستان کے ہی شہری ہیں، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پاکستان کی قربانیاں دی ہیں، تو پھر ہم کیوں اس طرح مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں میرے لیے ایسے تھی کہ ہمیں سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ایک طرح سے اچھا بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ عام شہری جو ہے دہشت گردی سے ہم بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن ہم خود ہوں دہشت گرد نہیں ہیں۔ یہ سارے ہوں واقعات، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، اور پھر جب ہمارے لوگ واپس اپنے علاقے گئے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کا علاقہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے، اب آپ لوگ اپنے علاقے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جب ہم گئے تو وہاں پہ مزید مختلف مسائل نے جنم دیا۔ سب سے پہلا جو ایشو جو میں سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں وہ لینڈ مائنس۔ لینڈ مائنس کا ایک ایسا ایشو تھا جس سے بہت زیادہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری خواتین، ہمارے جو جانور تھے وہ اس کا شکار ہوئے، ہماری بچیاں بہت بڑی تعداد میں اتنے معذور ہیں اور خود شہید ہو گئی، اس طرح ہمارے بچے۔ تو یہ ایک مطلب جنگ سے پہلے ہم مائگریٹ ہوئے، واپس جب آئے تو پھر اسی لینڈ مائنس کا شکار ہوتے رہے، اور تقریباً اب تک یہ واقعات جو ہے یہ ہو رہے ہیں، اور میں ہر پلیٹ فارم پہ اس کو میں اجاگر بھی کرتی ہوں، اور اس حوالے سے میں بات بھی کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ ہماری آواز کو سنا جائے گا، اور اس کے لیے لینڈ مائنس جو ہے اس کو کلیئر کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور دوسرا جو بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے وزیرستان میں ہر جگہ پہ گورنمنٹ کے جو اسکول ہے، جو گورنمنٹ کی جو بلڈنگ ہے،
वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उसकी कमी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, हमारे प्राइमरी लेवल पे हमारे मिडिल हाई स्कूल जो है वो है। इवन गर्ल्स कॉलेज जो है वो भी हमारे वजीरिस्तान में मौजूद है, लेकिन नॉन फंक्शनल है, पोस्ट एम्प्लॉयज है। इसकी वजह से हाँ, जब तो हमारे लोग जब टांग दिया खान पिशावर वहाँ पे जब रह रहे थे तो उनकी बच्चा तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन जब वो लोग वापस गए अपने इलाके तो वहाँ पे स्कूल नॉन फंक्शनल थे। जिस वजह से जो बच्चा तालीम हासिल कर रही थी या जिनके ख्वाब थे कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनके ख्वाब अधूरे रह गए क्योंकि वहाँ पे फीमेल टीचर नहीं थी, स्कूल नॉन फंक्शनल थे, तो वो कैसे तालीम हासिल कर पाती। तो ये बहुत बड़ा इशू था। इस तरह हमारे हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज है, वो भी यही नॉन फंक्शनल। बहुत ज़्यादा मसाइल थे। उसके लिए फिर मैंने एक कदम लिया कि मैं सामने आती हूँ, क्योंकि ये कदम लेना, मीडिया पे आना, एक दूसरे खबरदार से ये नामुमकिन था। अब तक लोग इस बात को समझते हैं और अब तक लोग इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि जो स्टेप आपने लिया है ये कोई भी नहीं ले सकता था। आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। एक तरह से आप जिहाद कर रही हैं अपने इलाके के लिए कि आप सामने आई हैं। पहली बार जब मैं सामने आई, मैंने मुख्तलिफ ट्रेनिंग ली मीडिया की। उस वक्त मैंने उर्दू में मास्टर किया था, मास कम्युनिकेशन नहीं की थी। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की। सिटीजन जर्नलिज्म की ट्रेनिंग मैंने की थी CNN ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और फिर इस तरह मुख्तलिफ ट्रेनिंग मैं करती रही। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची और मुख्तलिफ कम्पिटिशन में मैंने हिस्सा लिया। DW जर्मनी की जानिब से एक कम्पिटिशन हो रही थी मोबाइल जर्नलिज्म की। उसमें पूरे पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी थे उसके दरमियान जो है स्टोरीज की कंपटीशन थी। उसमें मैंने लैंड माइंस इफेक्ट की एक बच्ची थी 10 साल की, उसमें मैंने स्टोरी की थी और उसमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की। कराची IBA में मुझे प्राइज भी दिया गया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं वजीरिस्तान से एक खातून जो है इतना जो है पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों में वो एक पोजीशन हासिल करती हैं अपनी स्टोरी के हवाले से। इसी तरह मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मैं जीत चुकी हूँ। मेरी एक स्ट्रगल थी, मेरी एक सोच थी कि मैं अपने इलाके की खवातीन की मैं आवाज़ बनूँ, उनके लिए मैं कुछ करूँ। क्योंकि जब तक हम खुद अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, बाहर से कोई भी हमारे लिए कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जब तक वहाँ से आवाज़ें नहीं उठेगी, जब तक खवातीन के मसाइल पे बात नहीं होगी, तब तक कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। इसकी मिसाल मैं ये दे सकती हूँ कि जैसे अब आज मैं पौधा के वेबिनार में मौजूद हूँ, तो मैंने एक स्ट्रगल की है, मैंने अपने इलाके के लिए उठी हूँ, अपने खवातीन के मसाइल पे काम किया है। तो यही वजह है कि आज नाहिद साहिबा ने मुझे इस वेबिनार में शामिल होने का मुझे मौका दिया है। और पौधा की 16वीं जो सालाना कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे भी मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से खवातीन आई थी। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो कि खवातीन, स्पेशली जो देही रहनुमा खवातीन है, उस पर ये इतना संजीदगी से काम कर रही हैं। हमारे वजीरिस्तान में एजुकेशन के हवाले से अगर मैं कहूँ, अक्सर ये कहा जाता है, मतलब हमारी जो प्रोफाइलिंग हुई है या दिखाया जाता है कि ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो फीमेल एजुकेशन के हक में नहीं है या वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो मुख्तलिफ है। हमारी बच्चियाँ, हमारे वजीरिस्तान शाहमलाई के साइड पे एक स्कूल था, उसमें बच्चों ने एहतजाज किया था और उन्होंने जो बैनर उठाए थे उस पे ये लिखा था कि हम स्कूल में उस्तानिया घर में। अब वो अपनी जो उनकी उस्तानिया थी उनको ये मैसेज दे रही थी कि हम स्कूल में मौजूद हैं और आप लोग जो है घरों में हैं, और घरों में इसलिए कि वो कोई DI खान में है, कोई इस्लामाबाद में है, सैलरी अब वजीरिस्तान से ले रही है टीचिंग की। लेकिन इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है, कोई पिशावर में है, कोई कराची में है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। और इसी तरह उन बच्चों ने जब एहतजाज किया, मैं खुद गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी बच्चों में इतना शऊर है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकती है। मैं वहाँ गई, मैंने उनको कवरेज भी दिया और उनकी वजह से जब वो जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की उनके लिए वो स्कूल फंक्शनल हो गया। और अब वो बच्चियाँ जो है, ये 2019 की बात है, और अब वो बच्चियाँ जो है उस वक्त वो प्राइमरी में थी, अब 7 8 क्लास में है, और उनकी चंद बच्चियाँ थी, उनकी वजह से वो स्कूल फंक्शनल हो गया। और इसी तरह हमारे लोअर वजीरिस्तान में
کالج کی لڑکیاں، کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ خواتین اس طرح باہر نہیں جاتی یا احتجاج شکار نہیں کرتی، لیکن ان بچوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی. وہ بچیاں باہر نکل آئی، روڈ پہ بیٹھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹیچنگ اسٹاف سے وہ آ جائے، ہمارے کالج کی جو پڑھائی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، ہمارے لیے اسٹاف آ جائے. اور وہ بھی بہت زیادہ میڈیا کوریج اس کو حاصل تھی، جس وجہ سے وہاں پہ بھی وہ کالج جو ہے تھوڑا بہت فنکشنل ہو گیا. اور اسی رضیہ، طرح ہمارے وزیرستان ایریا میں گئی رضیہ تھی. آپ نے جی جی. بہت اہم بات کی. آپ نے بتایا کہ بچیوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے جو سلوگن اٹھا رکھے تھے ان پہ لکھا تھا ہم اسکول میں اور استانیہ گھر میں. یعنی ان بچیوں نے اس مسئلے کو اپنے پروٹیسٹ کے ذریعے ہائی لائٹ کیا کہ بچیاں اسکولوں میں پہنچ رہی ہیں لیکن جو اساتذہ کرام ہے، خواتین اساتذہ ہیں، وہ ان اسکولوں میں موجود نہیں ہیں. کیا آپ اسکول اور کالج کا نام اگر آپ ہمیں بتا دیں؟ آپ 2019 کی بات کر رہی ہیں اور آپ سو تھوڑا سا یہ زیادہ ہمارے لیے جی یہ سب کے لیے اچھا رہے گا کہ ہم. جی. چغملائی چغملائی اس کو کہتے ہیں، چغملائی تحصیل سروسائی چغملائی گرلز ہائی اسکول ہے. وہاں تو انہوں اچھا. نے ان بچوں نے احتجاج کیا تھا. وہ پکچر اور وہ ڈیٹا سب میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. اس وقت کے اوکے اوکے، احتجاج شکریہ. کی اور انہوں ٹھیک ہے، نے وہ ضرور شیئر بینر کیجیے گا. ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. وہ ریکارڈ پہ ہیں جی جی. تو انہوں نے احتجاج کیونکہ یہ ریکارڈ دیکھیں کیا ہم تھا. ایک سوری میں اس کو اپنی باقی تمام جو رورل ویمن لیڈر ہیں ان کے لیے میں نے اس سوال کو اس لیے اٹھایا ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں، آپ تمام دیہی رہنما خواتین، آپ اپنے اپنے علاقے کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں. یعنی باقی لوگوں کی آواز کو آپ لوگ طاقت دے کے تو اس کو اتنے نمایاں انداز میں سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا جو حل ہے وہ یقینی ہو سکے. تو یہ مجھے ان کا جو ایک سلوگن ہے وہ بڑا پاورفل لگا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کے اپنے کام کے جو آپ لوگ قرارداد کے نکات نکالتے ہیں اس کے حل کے لیے کچھ سلوگن سامنے ایسا لانا چاہیے، نکالنے چاہیے، بنانے چاہیے مشترکہ طور پہ، تاکہ ہم ان کا جو حل ہے وہ جلدی سب لوگوں کی توجہ اس پہ آ سکے اور اس کا حل جو ہے وہ مانگا جا سکے اور ہمیں میسر بھی ہو تمام آپ سب لوگوں کو آپ کے علاقے کے اصولوں مسائل کے حل کے لیے. سو اس لیے میں نے اس نقطے کو چھیڑا کہ آپ سب کی بھی جو نظر ہے جب آپ کسی ویبینار میں شامل ہوئیں تو ایسی مثالیں ڈھونڈنے پہ ہو، ایسی مثالیں ڈھونڈنے پہ ہو جن کی وجہ سے ہماری کسی اور ساتھی نے، ایک دیہی رہنما خواتین نے اپنے ضلع کے اندر کسی مسئلے کا حل یقینی بنایا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. انہوں نے ایک مسئلہ ہائی لائٹ کیا جو رضیہ محسود جیسی جو زیرک اور سنجیدہ مزاج رکھنے والی خاتون صحافی ہیں، اس نے اس کو اجاگر کیا اور وہاں پہ ٹیچرز آئیں اور اب بچیاں وہاں پہ اپنے حق کے تعلیم کو لے کے آگے چل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں کامیابی سے. سوری. خوش آمدید ان ساتھیوں کو جنہوں نے آج پہلی بار ہمیں آج کے ویبینار میں، جیسے آواران ڈسٹرکٹ جو ہے بلوچستان سے، وہاں سے، اور میڈم نیک پروین صاحبہ نے بھی پہلی بار ہمیں جوائن کی ہے، یہ نصیر آباد سے. آج صبح ہی میں نے ان کو لنک شیئر کیا ہے. سو تمام نیو ممبرانز کو پودا پاکستان کے اس دیہی رہنما خواتین کا جو گروپ ہے، ہفتہ وار ویکلی ویبینار ہے، اس میں ایک بار پھر خوش آمدید. جو نئے آئے ہیں ان سب کو بھی خوش آمدید. جی جاری رکھیے رضیہ. جی بالکل اسی طرح پھر ہمارے دوسرے علاقہ ہے سراروہا. سراروہا میں بھی جب میں گئی تھی وہاں پہ میں آتی ہوں، وہاں پہ میں گئی تھی تو بچوں کو پتہ چل گیا تھا کہ رضیہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے. میں کسی دوسرے کام کے سلسلے میں گئی تھی کیونکہ میں مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، مختلف جیسے ہم کوریج کرتے ہیں. تو وہاں پہ جب بچوں کو پتہ چلا کہ رضیہ یہاں پہ آئی ہے، وہ اس جگہ پہ آئی اور انہوں نے خود کہا کہ ہمارا یہ اسکول ہے سراروہا جو ہے گرلز اسکول ہے، اور یہاں پہ ہماری فیمیل ٹیچر جو ہے وہ نہیں ہے، نان فنکشنل ہے. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا، ایک مجھے بتا رہی تھی کہ میری ایک بہن اسی انتظار میں کہ ہماری فیمیل ٹیچر جو ہے وہ آئے گی اور میں پڑھوں گی اور میں آگے کچھ بنوں گی، اس کی شادی ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بھی کہیں رشتہ طے ہو جائے، کیونکہ بہت کم عمر میں جو ہے شادیاں کرواتے ہیں. میرا بھی رشتہ طے ہو جائے اور میں بھی پڑھائی جو ہے حاصل نہ کر سکوں، پر میرا خواب ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، میں علاقے کے لیے کچھ کروں. وہ جب مجھے بتا رہی تھی اور جس طریقے سے وہ مجھے ریکویسٹ کر رہی تھی، حالانکہ بچے جو ہے بچے اور بچیاں وہ اسکول سے بھاگتے ہیں، پڑھائی ان کو اچھی نہیں لگتی جو پرائمری لیول کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے وزیرستان میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے بچے اور بچہ ریکویسٹ کرتے ہیں تعلیم کے لیے. وہ خود
चाहते हैं कि हमारी जो है स्टाफ, हमारा टीचिंग स्टाफ जो है फीमेल टीचर वो आ जाए, क्योंकि हमारा कल्चर थोड़ा सा ऐसा है कि प्राइमरी से आगे जो बच्चियां है वो मेल स्टाफ से पढ़ाई नहीं कर सकती, वो फिर घर बैठ जाती हैं और उनकी तालीम जो है वो रह जाती है। तो उन बच्चों ने जब रिक्वेस्ट की, मैंने इस इशू को हाईलाइट किया, तो वहाँ पे जो लैंड ओनर होते हैं, जिनके नाम पे जो है स्कूल होते हैं, जिन्होंने स्कूल के लिए ज़मीन दी होती है, हमारे वजीरस्तान के 2018 में ये के पीके में मर्ज हुआ, उससे पहले हम एस के अंडर थे। पॉलिटिकल पी एक जो था पॉलिटिकल एजेंट, वो होता था जो कि पूरे इलाके का बादशाह था। और वहाँ पे जितने भी जो लड़कियों के स्कूल हैं, क्योंकि हमारे जो ऐसे मशरान थे, ऐसे जो हमारे मलकान थे, वो सिर्फ लड़कियों के स्कूल इस वजह से मंजूर करवाते थे ताकि वो उससे अपने हुजरे और बैठक बनाए, और वहाँ पे जो क्लास 4 की जो जॉब्स है वो उसकी अपनी फैमिली को मिल जाए, क्योंकि उन्होंने वो ज़मीन दी हुई है। तो इसी वजह से लड़कियों के स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही लोग जिन्होंने लड़कियों के स्कूल मंजूर करवाए थे, पॉलिटिकल एजेंट्स है, उन्होंने डिमांड की थी कि यहाँ पे लड़कियों के स्कूल हो, वही लोग फीमेल एजुकेशन के भी खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि ये स्कूल जो है फंक्शनल हो जाए, वो चाहते हैं ये हमारे स्कूल जो है उजरे और बेशक बने। लेकिन 2018 में जब हमारे कबायली अजला ये के पीके में मर्ज हुए, तो इसका हमें बहुत अच्छा असर ये पड़ा कि यहाँ पे हम उस आइन के अंडर आ गए, जो कि बाकी जो के पीके में जो इम्प्लीमेंट होता है, हमें वो सारे हकूक हासिल हो गए। और यहाँ पे डीसी आया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अदालतें आई, यहाँ पे पुलिस सिस्टम आया, यहाँ पे हर किसी को नुमाइंदगी मिली। और वो मशरान, वो मलिक खान जो कि इख्तियार में जो पूरे इलाके उसके अंडर थे, और सिर्फ उनकी बात सुनी जाती थी, सिर्फ उनके साथ मीटिंग होती थी, सिर्फ वही लोग मुराद हासिल करते थे, सिर्फ वही लोग अपने मफादात हासिल करते थे, उनकी जो ताकत थी वो कमजोर हो गई। यूथ को भी मौका मिला, और मॉनिटरिंग का सिस्टम आया, एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम आया, जिसमें बाकायदा तौर पे जो है टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो चेक किया जाता है, कौन से स्कूल फंक्शनल है, कौन से नॉन फंक्शनल है, कहाँ पे टीचर्स हैं, कहाँ पे टीचर्स नहीं है। तो इस चीज़ को चेक किया जाता है बाकायदा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ को हाईलाइट करूँ कि हाँ, हमारी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, क्योंकि इलाके में बस इन लोगों को डराया धमकाया जाता है कि आपने आगे सिर्फ ओके की, जब सब कुछ ओके है ये रिपोर्ट देना है, आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर नहीं आई या स्कूल नॉन फंक्शनल है। मुख्तलिफ तरीके से उनको भी प्रेशराइज किया जाता है। और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जनूबी वजीरिस्तान का, उसमें भी बहुत ज़्यादा खामियां है, बहुत ज़्यादा खामियां है। हमारे फीमेल जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी फीमेल ऑफिसर हैं वो भी संजीदा नहीं है फीमेल एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि हमारा जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, हमारा जो इंतजामिया है वो टांग में है, टांग डीआई खान के साथ है। और हमारा वजीरिस्तान जो है 4 घंटे का सफर है टांग से डीआई खान, और वो रिमोट कंट्रोल के जरिए हमारे वजीरिस्तान को चला रहे हैं। कोई विजिट नहीं होता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, मॉनिटरिंग वाले जाते हैं तो उनको डिस्प्रेशराइज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी फीमेल एजुकेशन के रास्ते में रुकावट है। अब अक्सर हमारी फीमेल जो टीचिंग स्टाफ है या मेल जो टीचिंग स्टाफ है, उनकी अक्सर शिकायतें ये सामने आती हैं कि हमारे लिए वहाँ पे एकोमोडेशन का मसला है, रिहाइश का मसला है, हमारे लिए वहाँ पे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, इंटरनेट नहीं है वहाँ पे वजीरिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक जो फैसिलिटीज है वो हमें वहाँ पे हासिल नहीं है, तो हम किस तरीके से वहाँ पे ड्यूटी करें। मैं यही कहती हूँ उनके साथ भी कि जिस तरह हम एजुकेशन पे बात करते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्कूलों पे बात करते हैं, तालीम की अहमियत पे बात करते हैं, उसी तरह जो उस्ताद है या उस्तानिया है, उनके जो इश्यूज हैं उनको भी हम हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके इशू सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तब वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उसके लिए मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोग अब जाए, जो मुतल्लिका स्कूल हैं जहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी लगी है, आप वहाँ जाए, वहाँ पे आप लोग डिमांड करें कि यहाँ पे हमारे ये इश्यूज हैं, ये हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, अपने हक के लिए आप बोले, तब आप लोगों के जो मसाइल हैं वो सुने जाएंगे, तब उससे काम होगा। अगर आप पहले से डीआई खान में बैठ जाए, आप पहले से इस्लामाबाद में बैठ जाए और कहे कि नहीं सहूलियात नहीं है,
मुझे नहीं जाना, मैंने तनख्वाह लेनी है, मैंने रेगुलर तनख्वाह लेनी है, अगर डिडक्शन होती है तो वो भी मुझे कबूल नहीं है। क्यों मुझसे डिडक्शन जो है वो होती है, और मुझे तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए और मुझे इस्लामाबाद में बैठ के मिलनी चाहिए, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब वो हमारे वजीरिस्तान में खासी एजुकेटेड फीमेल है जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, उनको मौका मिलना चाहिए। वो ड्यूटियों के लिए भी वो एग्री है, वो रेगुलर ड्यूटी भी करना चाहती है। तो अगर आप नहीं कर सकती, आप जो है इतनी ज्यादा फैसिलिटीज चाहती हैं, आप वहाँ पे नहीं जा सकती, तो कम से कम जो हमारी नई बच्चियां हैं जो अभी मास्टर करके आई हैं, जो घर बैठ के बहुत ज्यादा हमारी बच्चा जो है वो अवरेज हो रही है, आप उनको मौका दें कि वो जो है यहाँ पे ड्यूटी करे, वो हमारी वजीरिस्तान में तालीम को आगे लेकर जाए। क्योंकि जब अमन की बात होती है, हमेशा ये कहा जाता है कि अमन 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 का ताल्लुक एजुकेशन से है, अमन का ताल्लुक रोजगार से है। जहाँ पे बेरोजगारी हो, जहाँ पे सहूलियात ना हो, जहाँ पे तालीम ना हो, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, 5-10 हज़ार पे वो टारगेट फिलिंग भी करेंगे। वो अपना पेट पालने के लिए, अपना किचन जो है चलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद पे जा सकते हैं, वो बंदूक उठा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दें। हमारे वजीरिस्तान में जो लड़कियों की तालीम है, जो लड़कों बच्चों की तालीम है, ये दोनों जब होगी या जो हमारे लोग तालीम हासिल करेंगे, तब हमें अपने हकूक का पता चलेगा, तब हमें अपने लिए रोजगार के मौके ढूंढेंगे, तब हम अपने वजीरिस्तान की जो है उसमें वो बहुत सरखेज है। हमारे लोग ज्यादातर जो हमारी अक्सरियत है, हमारे मेल हजरात जो है, वो बैरूनी ममालिक में मजदूरी करते हैं, वहाँ गए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए कोई रोजगार के, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, रोजगार के यहाँ पे हमें मौके नहीं है। हम दुबई, सऊदीया, कतर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम ड्राइविंग करेंगे या मजदूरी करेंगे तो हम अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। हमारे वजीरिस्तान में मदनियात वसाइल जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारे वजीरिस्तान में जैतून जो है उससे अगर हम वो काम करे तो वो एक सब इंकलाब लेकर आ सकता है। वो बहुत ज्यादा है, जंगली जैतून, उसके बड़े बड़े जंगल है, उस पे काम करें, उसका आयल निकाले, उस वो भी हमारे वजीरिस्तान की तकदीर बदल सकता है। इसी तरह बाकी बहुत ज्यादा चीजें हैं, कीमती जड़ी बूटियां हैं, उस पे काम हो सकता है। सिर्फ अगर हम लोग तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे और बच्चियां, वहाँ पे बहुत कीमती पत्थर है, बहुत ज्यादा जो है। एक तरह से मैं समझती हूँ कि वजीरिस्तान खजाने से भरा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को इस समझ नहीं है क्योंकि तालीम नहीं है। जब आपके पास तालीम नहीं होगी तो आप अपने लिए मौके हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ कि अमन का ताल्लुक तालीम से है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब अमन नहीं होगा तो हम तालीम कैसे हासिल करेंगे। तो अमन के लिए हमें स्टेप लेना होगा कि जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे स्कूल रोज के साथ हैं, जहाँ पे लोग जो है गर्मियों और सर्दियों में वहाँ पे रिहाइश पजीर है, तो वहाँ पे उन स्कूलों को तो फंक्शनल किया जाए, वो भी नॉन फंक्शनल है, उससे भी काम नहीं हो रहा। उसके साथ साथ मैं एक बात नहीं साहब ये आपके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँ कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वहाँ हमारे वजीरिस्तान में, जितने भी प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं, उसमें बच्चे और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत दूर दूर से बच्चे और बच्चियां पैदल चढ़ के आती हैं। मैं आपके साथ वो वीडियो जब शेयर करूंगी, आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएगी कि ये बच्चे और बच्चा तालीम के लिए कितना दूर से जाते हैं, क्योंकि उनको शौक है, वो हासिल करना चाहते हैं तालीम। उनके वालिदैन को शौक है कि हमारे बच्चे और बच्चा तालीम हासिल करे। वो तंग आ चुके हैं इस हालात से, दहशतगर्दी से, इन बम धमाकों से, बंदूक से, वो कलम से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वहाँ ताल्लुक है। क्योंकि वजीरिस्तान पे जो हालात होंगे, तो हम अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया है, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल टच है, अफगानिस्तान के जो हालात होते हैं उससे डायरेक्ट हमें इफेक्ट होते हैं, तो और क्या फिर है उसका वास्तव असर में। पूरे पाकिस्तान पे होता है। तो उसका असर पूरे पाकिस्तान पे होता है, हर जगह पे जो है ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, अमन जो है वो खराब होता है। तो बहुत ज़्यादा तालीम देखिए बहुत ज़रूरी होता है।
हेलो Um, हेलो। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी। यस, Nida, अपना मैं प्लीज आपको कह स्पीकर रही थी। माइक ऑन कीजिएगा। जी जी, जी अब जी, बहुत आपकी आवाज आ शुक्रिया। रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रज़िया ने अभी तक जो अपने साउथ वजीरिस्तान के अंदर तालीम के मसाइल को और जिस बात को बहुत हाईलाइट किया है वो ये है कि जनूबी वजीरिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो अमन के ख्वाहां हैं, और वो जो इंतशार है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। और उनका ख्याल ये है कि अमन के फरोग के लिए हमें जो चीज सबसे पहले करनी होगी वो तालीम को आम करना होगा। और तालीम की राह में जो हायल रुकावटें हैं जिनका उन्होंने तज़किरा किया है, जो अभी तक मुझे समझ आई हैं, उनमें से एक का मैं ये बात करी हूँ कि जैसे स्कूलों के अंदर असातिज़ा कराम का मौजूद ना होना, और उस मसले की जो रूट काज है, उसकी जो बुनियादी वजह वो बता रही थी। वो जो मैं समझ पाई हूँ कि वहां पे जो लोग हैं, जो वडेरे कह लें, जिस तरह से भी आप उनको कह सकते हैं कि वो लोगों की राय पे असरअंदाज होते हैं, जायदाद रखने वाले, उन्होंने अपने इलाकों में लड़कियों के स्कूलों के लिए डिमांड की है, लड़कियों के स्कूल बनाए हैं, लेकिन वो स्कूल फिर उनकी उनके लिए बैठक की उन्होंने जगह फराहम की, और जो उनके क्लास 4 थे उधर उनके अपने लोगों को नौकरी मिल गई। तो बच्चियां वहां जाने ना पढ़ने के भी उन्हें कोई खास सरोकार नहीं है। तो इनका ख्याल ये है कि स्कूलों के अंदर माहौल साजगार हो ताकि लोग तालीम हासिल कर सके। मैं यहाँ पे अपने ग्रुप के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, 1 मिनट के लिए, जब तक रजिया अपने आगे इसको क्योंकि उन्होंने हल भी हमें प्रपोज करना है, उसकी तरफ भी हमारी रहनुमाई करेंगी। मुझे सिर्फ अपनी साथियों से, दई रहनुमा खवातीन से एक बुनियादी क्वेश्चन पूछना है कि क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई ऐसी बात है जो यकीनी बनाती है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए? मुझे चैट में आप बता सकती हैं, हैंड रेज करके अगर बता दें तो अच्छी बात है। वरना चैट में आप बता सकते हैं, क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई आर्टिकल ऐसा है जो बच्चों और बच्चियों की तालीम को यकीनी बनाता है? पाकिस्तान का आर्टिकल जो है वो बच्चों के ऊपर जो मुकम्मल उनको प्रोटेक्शन और उनकी सर्वाइवल, उनके 4 राइट्स के ऊपर है, जो कि 52 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें हर बच्चे को जो है वो अकॉर्डिंग टू यूएन, पहले तो उसमें जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है वो बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू यूएन अंडर 18 ईयर्स ओल्ड हर बच्चा जो है वो 18 साल से कम उम्र का है वो बच्चे की उसमें आएगा। और उसमें बाकायदा जो है वो सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, उसकी पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट, ये 4 मेन पिलर हैं जिनके ऊपर बाकी तमाम आर्टिकल्स जो हैं वो मबनी हैं। ये सिर्फ बच्चों के आर्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज मैंने 5 साल लाहौर में 5 तहसीलों में काम किया है जो कि चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर था। और उसमें जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर ये प्रोजेक्ट था। और इसमें जो है वो हमने खुद जो है वो जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं और मजीद अगर मैं बात ये करूँ कि क्योंकि ये नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल्स के साथ था, लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ, तो इसके लिए हमें ये जो है वो हर बच्चों को खुद भी बताना, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से बताना, और उनके टीचर्स को जो है वो मोबिलाइज करना, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करना, और उनके पेरेंट्स को जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग को बताने के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग करवाने के लिए कि ये चीजें जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कि अपब्रिंगिंग हमारे पेरेंट्स का अवलीन जो है वो अव्वल दर्जे पे है। तो ये उन आर्टिकल्स में जो है बताइए। वो क्लियर बताया गया है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर बच्चे का ये राइट है, बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन है, जो कि वो उसने गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड करना ही करना है। बहुत शुक्रिया। अशमाल, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, प्लीज ये बता दें अगर। और आपने बहुत मैं अच्छा बेसिकली हमें मदद की जी। मैं बेसिकली हाफिजाबाद से हूँ। जी। लेकिन ये है कि मैं पिछले 13 साल से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी जो कि आई नो। ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से, जी जी। क्योंकि मैं जी जी, ट्रांसजेंडर मैंने राइट्स सबके लिए पूछा है। मैंने सबके लिए पूछा है कि आप चूंकि लाहौर से, तब मेरे साथ कन्वर से आपने हफ्साबाद चैट में पहले लिखा हुआ था, लेकिन ताकि हम्म। तमाम साथियों को मालूम हो सके कि जवाब जो है वो
कहाँ से आया? हाफसाबाद से हमारे साथ अशमाल, इन्होंने हमें इसका जवाब, ये बहुत शुक्रिया अशमाल। मैं ये अभी हैंड रेज है फिजा कमल साहिबा का। मैं अगेन अपने सवाल को दोहराती हूँ, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बच्चों और बच्चियों की तालीम को यकीनी बनाता है? सोच रखिए अपने जवाब, और मैं फिजा कमल की तरफ जाती हूँ जो कि कोयटा से हैं। जी फिजा, ये भी साफी है, साफी साथी है हमारी कोयटा बलूचिस्तान से। फिजा आप म्यूट अनम्यूट जी करें खुद अस्सलाम को। वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। नाइदा, यहाँ पे ना दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि खवातीन की जो एजुकेशन है उसको लेके बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासर होती है। कभी भी कोई भी क्लाइमेट चेंज हो तो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट स्कूल करा दिया बंद। जाए। बच्चों के हम्म। पेटों की फीस पे करने के लिए तो माँ बाप के पास पैसे हैं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं है। और दूसरी चीज ये वो कहते हैं कि यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो ये कि लड़कियों ने करना ही क्या है, चूल्हा चौका तो उन्होंने करना है, बच्चों के पैम्पर्स चेंज करने। तो उसके लिए तालीम की उनको उन्होंने तालीम हासिल करके कोई मिनिस्टर लग जाना है, कोई कमिश्नर लग जाना है। ये इनका ना बेसिक वो होता है सेंटेंस। तो सबसे पहले ना एजुकेशन की जरूरत ना सेंसिटाइज करने की यहाँ के पेरेंट्स को जरूरत है। दूसरी चीज ये कि असातिज़ा का एहतराम नहीं होता। किसी भी स्कूल में चले जाएं, असातिज़ा के लिए चेयर अवेलेबल नहीं होती। हमने भी अपने दौर में पढ़ा है, हमारे टीचर्स हमें चेयर पे बैठ के पढ़ाते थे। लेकिन अब किसी भी स्कूल में असातिज़ा के लिए चेयर नहीं अवेलेबल होती। असातिज़ा को ये इजाजत नहीं होती कि बच्चा अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसे रोके, उसे डांटे। यहाँ तक कि बच्चे जो फिजिकल भी हो जाते हैं टीचर्स के साथ, चीजें उठा उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई चेक नहीं होता। तो ये भी जो बच्चों के बिगड़ने की बड़ी तादाद भी यही है। और ज्यादातर जो कम्युनिटी है वो टीचिंग टीचिंग जैसे प्रोफेशन से गुरेज कर रहे हैं आजकल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फिजा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दे दिया। हैंड रेज है विहाड़ी से साइमा का, और उससे पहले चैट में उम्मे कलसूम सयाल साहिबा ने आप सब लोगों की मदद की है, आप उसको देख लीजिए। थैंक यू उम्मे कलसूम सयाल। जी साइमा, बात कीजिए प्लीज। जी, मुझे यही कहना था कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 25A जो है उसमें बुनियादी तालीम जो है वो हर बच्चे और बच्ची के बुनियादी हक के बारे में बात की गई है। बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि इस जो हमारा ये मुलाकात का तसलसल है उसके अंदर हम सब एक दूसरे की जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास पहले मालूमात है उनका यादा करते हुए जो नए साथी शामिल हों, ताकि हमने एडवोकेसी करनी है ना, तमाम लोगों ने अपने इलाके के मसाइल को हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हम अपने मुल्क के आइन के साथ उसका ताल्लुक बनाते हैं। तो आज की जो गुफ्तगू है वो सारी हो रही है उन मसाइल की निशानदेही हो रही है जो पाकिस्तान के आर्टिकल 25A, जो इंश्योर करता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर बच्चा और बच्ची उनकी फिजिकल, लाइक अगर वो किसी तरह की माजूरी का शिकार हो या वो किसी भी मजहब से उनका तल्लक हो, उन तमाम बच्चों को मुफ्त और मयारी तालीम फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो अगर इसमें लाजमी कहीं मसाइल लाजमी हैं का उनकी वर्जन आप है। निशानदेही कर रहे हैं, तो हम वही बात कर रहे हैं कि अ, इस पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए पाकिस्तान के कोने कोने में, ताकि हर बच्चा और बच्ची मयारी तालीम तक उसकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। हम वापस जाएंगे रजिया की तरफ। जी रजिया जी महसूद। जी जी, मुझे बहुत हेलो। अच्छा लगा। हमारी जो पार्टिसिपेंट है वो काफी जी अच्छे जी। हैं और आपके पास नॉलेज भी है। जी जी, बात करें रजिया। जी, मेरे ख्याल में कोई बीच में बोलना चाहती थी, शायद इसका कोई हाँ क्वेश्चन था अभी। प्लीज, मैं गुजारिश ये कर रही हूँ कि हाँ जी, बहुत सी साथियों ने चैट में लिख दिया है कि 25A पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25A, ठीक है, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 25A यकीनी बना रहा है हर बच्चे और बच्ची के तालीम के बुनियादी हक को। सो बहुत शुक्रिया। इसको बाकी लोग भी काफी डिटेल लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ। थैंक यू माय डियर कोलीग जिन्होंने हमारे साथ अब ये शेयर कर दिया इसका आर्टिकल के राइट अप पूरा। तो इसको भी देख लीजिए, अपने पास सेव भी कर लीजिए। जी हम वापस चलते हैं रजिया की तरफ। जी रजिया, जी प्लीज बिल्कुल। बात को जारी रखिए। जी 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 बिल्कुल, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी।
जो मैं वो फीमेल एजुकेशन या वजीरिस्तान में एजुकेशन के हवाले से मैं काफ़ी आर्टिकल लिख चुकी हूँ, काफ़ी ब्लॉग लिख चुकी हूँ। हर जगह पे मेरी जो ज़्यादा तरजीह है वो एजुकेशन पे है, क्योंकि मैं समझती हूँ एजुकेशन ही वो वाहिद चीज़ है जो हमारे सारे मसाइल को हल कर सकती है। तो जितने भी मैंने काम किया है, मैं ग्राउंड पे जो लोगों की सोच होती है, अक्सर देखा जाता है कि तालीम को खवातीन को तालीम की ज़रूरत नहीं है, अगर वो तालीम हासिल करेगी तो कौन सा आसमान से सारे सोच के लेकर आ जाएगी। तो बस उसको घर के काम काज जो है वो सीखने चाहिए, उसमें शादी करनी है, बच्चों को संभालना है। तो ये आम ऐसी सोच है जो अक्सर जैसे लोग करते हैं कि फीमेल को अगर थोड़ा बहुत कुछ सीखना है तो दीनी उलूम जो है वो उसको सीखने चाहिए, बाकी जो है असली उलूम या जदीद जो टेक्नोलॉजी है इसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, खवातीन को घर में ही रहना है। तो ये चीज़ें ये बातें बहुत सी होती हैं, तो इसके हवाले से मैं मुख्तलिफ मसाइल जो है उसको उजागर करती हूँ। मैं आर्टिकल लिखती हूँ और लोगों की जो ये सोच है उसको बदलने के लिए कि नहीं, फीमेल एजुकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे की जो पहली दरगाह है वो माँ की गोद, माँ की गोद से ही हम बच्चों को एक पुख्ता सोच देते हैं और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के जो आइडियल्स होते हैं वो उसके वालिदैन होते हैं। जो बचपन से हमें सिखाया जाता है वो पूरी जिंदगी पे वही चीज़ जो है हमारी जिंदगी को मुतासर करती है, और हम अमली तौर पे उसका मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर हम कहते हैं माशरा खराब है, माशरा खराब है। माशरा किससे बनता है? हमसे बनता है। जो बच्चे जिस तरीके से हम उसकी तरबियत करते हैं तो वही बच्चे बड़े होकर मुआशरे में बिगाड़ बनाते हैं, अगर हम उसकी तरबियत अच्छे तरीके से ना करें। तो मुआशरे को हम ये चीज़ दे रहे हैं, मुआशरा हमारी वजह से खराब है। तो इस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है, और अक्सर मैं ये भी कहती हूँ कि हम किसी स्कूल को ब्लेम करते हैं, जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी में स्कैंडल सामने आ जाता है तो कहा जाता है कि देखो, अगर आप अपनी बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजेंगे तो वहाँ पे उनके साथ प्रोफेसर ये करेंगे, मार्क्स के हवाले से उनको ब्लैकमेल करेंगे, जिस तरह बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया था। इसी तरह डेरा इस्माइल खान में गोमल यूनिवर्सिटी जो है उसका स्कैंडल सामने आया था। इसी तरह के स्टैंडर्ड सामने आ जाते हैं तो लोग फीमेल एजुकेशन से नफरत करने लग जाते हैं कि नहीं, अपनी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, कॉलेज नहीं भेजना, यूनिवर्सिटी नहीं भेजना। तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं होती हूँ, मैं इस हवाले से भी काफ़ी लिखती हूँ, काफ़ी बोलती हूँ कि नहीं, आप अपने बच्चों को पुख्ता सोच दे, आप अपने बच्चों की बाकायदा जो है चेक एंड बैलेंस करें, मॉनिटरिंग करें, एक तरह से उनको एतमाद दे, उनको ट्रस्ट है। आपकी बच्चा जब बाहर जाती है उनके साथ इसी तरह के कोई स्कैंडल्स होते हैं, कोई उनको ब्लैकमेल करता है, तो वो बच्चियां डरती है कि हम घर जाएं, घर में बताएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले उल्टा हमें डांट के और हमें यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज से बाहर ना कर दे। तो इसी खौफ की वजह से अक्सर बच्चियां जो है वो खामोश होती हैं और वो फिर ब्लैकमेल होती जाती है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे जरूरी चीज जो ये है वो यही है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को पुख्ता सोच दें, चेक एंड बैलेंस रखें उनका, कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, उनको अपना साथी बनाया कि वो बाहर की हर चीज जो है अपने वालिदैन के साथ बिला खौफ खतर शेयर कर सके। और ये सोल्यूशन नहीं है कि हम उसको तालीम से दूर रखे, यूनिवर्सिटी ना भेजे तो कॉलेज ना भेजे, स्कूल ना भेजे, क्योंकि ये हम अपनी कमजोरियों को मजीद कमजोर अपना अपने उसको बना रहे हैं। तो इससे भी मैं ज्यादा वर्क करती हूँ। और एक जगह पे मैं अपने बच्चों से स्कूल गई थी, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, तो वहाँ पे हमारे वजीरिस्तान की एक फीमेल आई थी। जब मैं जो स्कूल की प्रिंसिपल है उसके साथ में बात कर रही थी तो वो मुझे से दूर दूर के देख रही थी। उसने कहा कि आप रजिया महसूद तो नहीं है? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं रजिया महसूद हूँ। तो वो फौरन उठ के आ गई और मुझे गले मिल के रोने लगी। उसने कहा कि रजिया, आपको पता है मैं आपकी वजह से अंधेरे से रोशनी की तरफ आई हूँ। मैं हैरान हो गई कि मैं तो इसको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मेरी वजह से ये कैसे अंधेरे से रोशनी की तरफ आई है। तो उसने कहा कि आप जो लिखती है, आप जो वीडियो बनाती हैं, मेरे हस्बैंड जो है वो उस वक्त वो हस्बैंड गोमल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर कर रहे थे। उसने कहा कि वो सब मुझे बताते हैं, हालांकि वो अनएजुकेटेड थी, जॉइंट फैमिली में थी और उसके तीन बच्चों की वो माँ थी। उसने कहा कि आपके आर्टिकल का जो आप लिखती हैं इतने पुरस्कार होते हैं, उसमें इतना असर होता है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको जो है मैं चाहता हूँ कि आप तालीम हासिल करें। मैंने कहा इस उम्र में मैं कहाँ स्कूल जाऊंगी, कौन सी स्कूल जाऊंगी? तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर में ही आपके लिए ट्यूशन रखूंगा, फीमेल आएगी आपको पढ़ना लिखना जो है वो सिखाएगी। तो उसने कहा कि अब मेरे बच्चे भी हैं, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, जॉइंट फैमिली में जाहिर बात है जिम्मेदारियाँ और भी ज्यादा होती है।
اس ने कहा कि 1 घंटे के लिए लड़की आती है, वो मुझे ट्यूशन पढ़ाती हैं। अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं पेरेंट्स टीचर्स जो मीटिंग होती हैं वो अटेंड करती हूँ, और मुझे बहुत सी चीज़ों की समझ आ गई। उसने कहा कि मेरी एक तरह से आंखें खुल गई हैं, मुझे दुनिया नजर आने लगी है कि वाकई पहले तो मैं अंधेरे में थी, अब मैं रोशनी की तरफ आई हूँ। और उसने कहा कि ये सिर्फ आपकी वजह से मैं आई हूँ, कि आपके जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें इतना असर होता है आपके अल्फाज में, आपकी बातों में, कि अब इस उम्र में मैं पढ़ रही हूँ। और इसी तरह एक दूसरे हस्बैंड वाइफ थे जो एजुकेटेड थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि क्योंकि हम दोनों एजुकेटेड हैं लेकिन घर में जो मेरी वाइफ है उसको जॉब की परमिशन नहीं है कि वो जॉब करे। तो उसने कहा कि मेरी वाइफ ने कहा कि जब रज़िया इतना स्ट्रगल कर रही है हमारे इलाके के लिए, तालीम के लिए, बच्चों के लिए, तो मेरे पास भी तो तालीम है, क्यों ना मैं इन बच्चों मैं भी तो कर सकती हूँ। उसने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो बच्चों को, जो वहाँ के इलाके के जो बच्चे और बच्चियां है वो घर में उसको ट्यूशन पढ़ा रही है, कि अगर मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं नौकरी नहीं कर सकती, मैं इतना तो कर सकती हूँ कि मैं, मेरे पास जो नॉलेज है, जो तालीम है, मैं ये रोशनी अब इन बच्चे और बच्चों को मैं दूँ। तो उसने कहा कि तकरीबन 20-30 बच्चे इलाके के उसके पास आते हैं और वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो ये फीडबैक जब आपको मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वाकई जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या जो मैं कुछ कर रही हूँ, इसका जो है रिजल्ट सामने आ रहा है या लोगों पे इसका असर हो रहा है। तो ये पहले जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी, जब मैं बात कर रही थी, क्योंकि हमारे वजिस्तान की बहुत एजुकेटेड तरह फीमेल है जो मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद में अपनी खिदमत पर अंजाम देती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में है, लेकिन वो सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से नहीं करवा सकती थी कि मैं, मेरा ताल्लुक वजीरिस्तान से है, क्योंकि उनको खौफ था कैसा ना हो कि कहीं से मतलब हमारे लोग एतराज ना करे या मैं टारगेट ना हो जाऊं या मुझे मारा ना जाए, कत्ल ना किया जाए। लेकिन मेरे आने के बाद कि मैंने पहली बार ये नारा लगाया कि मैं वजीरिस्तान से हूँ, हर जगह से मैं वजीरिस्तान से हूँ, मैं वजीरिस्तान से हूँ। तो अब हमारी वही खवातीन जो मुख्तलिफ इदारे में है वो बहुत फख्र के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि हम, मेरा ताल्लुक वजीरिस्तान से है, मैं वजीर बेल्ट से हूँ या मैं महसूस बेल्ट से हूँ या मैं नॉर्थ वजीरिस्तान से हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि उनको भी एक हौसला मिला है, वो भी अब अपना तारुफ करवा सकती हैं। कल भी यूथ अफेयर के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो हमारे यहाँ पे, उन्होंने एक चक्कर लगाया था कि ब्रेस्ट कैंसर पे भी पहली बार वजीरिस्तान में फीमेल का सेमिनार वो मैंने अरेंज करवाया था और बहुत अच्छा वो हुआ। और अब मैं फीमेल एजुकेशन की जो अहमियत है उसके हवाले से मैं एक सेमिनार कर रही हूँ, इंशाल्लाह उसके लिए मेरी तैयारी है कि इसको मैं मजीद जो है उजागर करूँ, फीमेल एजुकेशन की अहमियत को लोगों के माइंड को मैं बनाऊँ कि फीमेल एजुकेशन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम, अगर, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जॉब नहीं करवाना चाहते, ना करें, ना करवाए आप जॉब, लेकिन अगर वो तालीम याफ्ता होगी तो घर में उसको बहुत सी चीज़ों की समझ आएगी, वो अस्पताल जाएगी तो बोर्ड देख के उसको समझ आएगा कि ये कौन सा डॉक्टर है, पर्ची देख के उसको समझ आएगी, बिल घर आएगा तो उसको समझ आएगी कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। बाकी घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तालीम याफ्ता जो औरत होती हैं वो उसको मैनेज कर सकती हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं, सोसाइटी में उसका बहुत अहम किरदार होता है, हर तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं, कवर कर सकती हैं। घर में जो तनाज़ात होते हैं, जो घरेलू झगड़े होते हैं, तो उसमें भी जो एजुकेटेड खवातीन है उस वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि उसको समझ होती है कि यहाँ पे मैंने इस बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं तालीम के साथ। अब हमारे टांग का जो ज़िला है वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है कंप्लेंट सामने आ रही थी कि नादरा में, क्योंकि शनाख्त कार्ड बनते हैं उसमें जो तस्वीर लगती है उसके लिए जाहिर बात है उसके बगैर तो आपका शनाख्त कार्ड नहीं बनता। तो जो खवातीन है उनके लिए जो फोटोग्राफर था वो एक मेल था, उस पे बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि हमारी खवातीन जो है वो पर्दा है, वो पर्दा करती है और वहाँ पे जो है वो अपना बुर्का जो सरताज है वो हटाती है, अपना निकाब हटाती है, और मेल फोटोग्राफर उनसे तस्वीर खींचते हैं। तो हमें मेल नहीं चाहिए, हमें फीमेल फोटोग्राफर चाहिए जो फीमेल के लिए फीमेल हो। और इसी तरह बाकी मुख्तलिफ जो फील्ड है उसमें भी उनकी यही डिमांड होती है कि हमारी खवातीन के लिए फीमेल
تو میں نے وہاں پہ بھی فیمل ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے اس میں نے لکھا کہ بالکل ہم ہر جگہ پہ ہمارے لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ فیمل ہمیں چاہیے، اور دوسری بچوں کو پڑھائیں گے نہیں تو کہاں سے ہماری فیمل فوٹوگرافر آئے گی، کہاں سے ہماری فیمل کے لیے فیمل اسٹاف کہاں سے آئے گی، آسمان دور جائے گی۔ جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تب ہی یہی بچہ بڑی ہو کے مختلف شعبوں میں جائے گی، ہماری خواتین کے لیے خواتین ہوگی۔ جہاں پہ ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کا پردہ خراب نہیں ہوگا، میل فوٹوگرافر کی جگہ فیمل فوٹوگرافر بیٹی ہوگی۔ اسی طرح بینک ہماری میں تو یہی چیز رہائی ضروری ہے کہ زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ جی آ بہت جاؤں شکریہ یہ رضیہ۔ سیاسی شور ہمارے میں نے جی جی بہت جی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو لنک کر رہی ہیں تمام مسائل کے حل کو خواتین کی تعلیم کے ساتھ، اور اس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا اور انہوں نے بھی ذکر کیا، فضا صاحبہ نے بھی، کہ شادی جو ہے وہ کر دینی ہے اور گھر سنبھالنا ہے۔ آپ نے پہلے بتایا کہ بچی ایک نے جو تذکرہ کیا کہ خواتین جو ہیں وہ بچیوں کو، میری بڑی بہن تعلیم اسکول اس انتظار میں رہی کہ اسکول میں ٹیچرز آئیں گی اور وہ پڑھ سکے گی اور پھر اسی میں اس کی شادی ہوگی، اور اس کو یہی ڈر ہے کہ وہ بھی تعلیم سے رہ نہ جائے۔ تو جب تعلیم کا حق ان کی کمیونٹی میں ان کو ملا، استاد، اسکول اور جو تعلیم فراہم کرنے والا ماحول ہے وہ میسر آیا، تو پھر اس بچی کی شادی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ڈیلے ہو جاتی ہے۔ سو آپ نے کافی سارے مسائل کا بھی تذکرہ کیا، اور مسائل کے حل کے لیے جو بنیادی وجہ بتائی اس کے لیے تعلیم ہی بتائی۔ تعلیم کے جو مسائل آپ کے علاقے میں ہیں ان کے حل کو آپ کیسے پرپوز کرتی ہیں، آپ کیا تجویز کرتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، سفارشات کیا آپ دینا چاہتی ہیں، یا گروپ سے ہمیں پوچھنا ہے؟ میں بتاؤں یا گروپ میں کوئی جو ہے حصہ ڈالنا میں وہی چاہتی پوچھنا ہیں وہ؟ چاہتی ہوں، مطلب آپ لوگوں کے پاس جو باقی میٹنگ کے شرکا ہیں خواتین، آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو پلیز لکھ رکھیے، ابھی آپ کی طرف ہم آئیں گے۔ اور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ رضیہ صاحبہ اگر ہمیں بتائیں کہ جو مسائل جن کو یہ ہائی لائٹ کرنی ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ان کے ضلع میں درپیش ہے، اس کو وہ کیسے، ان کا حل کیسے پرپوز کرتی ہیں۔ جی میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں میڈم ام کلثوم سیال صاحبہ کو۔ یہ ہماری سینئر ساتھی جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی کچھ دن پہلے بڑا مبارک سفر سے واپس آئی ہیں، عمرہ کی ذمہ داری پوری کر کے، عمرہ کے فریضے سے واپس آ کے اس کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کا ہینڈ ریز اور ان کو بات کرنے کا کے لیے دعوت بھی دیتے ہیں۔ جی ام کلثوم سیال صاحبہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ میں سب کی وبرکاتہ۔ باتیں سن رہی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا، ابھی ہماری بہن جو مسائل بتا رہی تھیں اور پھر ان کا حل بھی وہ بتا رہی تھی۔ اچھا میں اسپیسیفکلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا نا کوئی سجیشن دینا چاہیں، ہم خود جی جی چونکہ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں تو میرے رورل ایریا میں بھی کام کر رہے ہیں، شہر میں بھی کام کر رہے ہیں، سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے بھی۔ اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم ہم نے ایک سلوگن بھی بنایا ہوا ہے کہ ہر بچی اسکول میں کم از کم 12 سال۔ تو جب بچی 12 سال اسکول میں رہتی ہے، یعنی پانچویں سال میں وہ اسکول میں داخل ہوتی ہے، اور جب وہ 12 سال اسکول میں رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایف اے اس نے وہاں سے کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو جب تک وہ ایف اے کمپلیٹ کرتی ہے تو تب وہ کافی میچور بھی ہو چکی ہوتی ہے اس حد تک کہ جو دیہاتوں میں 5ویں 6ٹی کی بچی کو شادی کر دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، تو کم از کم ہر بچی اسکول میں اگر 12 سال پڑھتی ہے تو آئی تھنک سو کہ وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنی فیملی کو سنبھال سکے اور آنے والی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکے۔ تو ہم نے تو ایک سلوگن بھی یہ بنایا ہوا ہے اور اس کو ہر جگہ پروموٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سو آپ کا سلوگن ہے کہ ہر بچی سکول میں کم از کم کم 12 از کم سال 12 سال۔ بہت شکریہ ام کلثوم سیال صاحبہ۔ جی رضیہ، کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہو ان سے، رضیہ سے تو آپ کر سکتی ہیں۔ رضیہ سے ہم حل کے لیے تجویز لے رہے ہیں کہ وہ حل اس کا کیا ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے علاقوں میں اس مسئلے کا حل کیسے ممکن ہوگا۔ جی رضیہ۔ جی ہمارے علاقے میں فیمل ایجوکیشن یا اوور آل ایجوکیشن کا حل یہی ہے کہ اس کے لیے ایکشن لیا جائے کہ
जितने भी जो स्कूल टीचर्स हैं वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे। अगर वो वहाँ पे ड्यूटियाँ नहीं कर रही तो उनकी जो सैलरी है उनको फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि उनकी सैलरी जब मुकम्मल फ्रीज होगी तभी उनको एहसास होगा, जब पैसे उनके पास आना कम बंद हो जाएंगे तभी वो अपनी ड्यूटी के लिए जो है वो संजीदा होगी, वो आएगी। और दूसरा, मैं जो वजीरिस्तान के जो लोग हैं उनको भी मैं इसका कसूरवार ठहराती हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि चमलाई में लड़कियों ने अपने लिए आवाज़ बुलंद की तो वो स्कूल उनके लिए फंक्शनल हुआ, वो चीज़ मीडिया पे हाईलाइट, और हमारे एमपीए साहब भी वहाँ पे आ गए, उन्होंने भी देखा ये सारी चीज़ें जो है एक इनके नोटिस में आ गई कि यहाँ पे बच्चा चाहती है। तो इसी तरह हमारे बाकी भी जितने भी स्कूल हैं जो बंद पड़े हैं, पोस्ट एम्प्लॉयज हैं, नॉन फंक्शनल स्कूल हैं, उनके लिए भी मैं यही तजवीज़ देती हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटी जो है, क्योंकि उनकी आवाज़ में बहुत पावर है, वो अगर मुतहद हो जाए, वो इस चीज़ पे मुतफिक हो जाए कि नहीं हर हाल में हमने अपने बच्चे और बच्चों के लिए स्कूल फंक्शन करवाने हैं, तो उनके स्कूल फंक्शनल हो सकते हैं। उनके लिए उनको भी उठना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ हम हुकूमत से डिमांड करते हैं, हर जिला हम किसी से करते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते, खुद बैठे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कम्युनिटी के लोगों को भी इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे नॉन फंक्शनल स्कूल हैं, जहाँ पे पोस्ट एम्प्लॉयज हैं, उनकी वो लिस्ट जो है आवेजा करे, उनके लिए वो एहतजाज भी स्टार्ट करे, वो सामने आए, बच्चियाँ जो है अपने हकूक़ के लिए लड़ सकती हैं। इसी तरह हमारे सारे जो हो सकते हैं। और दूसरा जो मसला है वो यही है कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी इस चीज़ का संजीदा नहीं होता। वो भी अक्सर ये होता है कि जो टीचर्स होती हैं जो वीडियो पावर है वो उनके पास होता है, और अक्सर जो है उनसे डिडक्शन और ये वगैरह जो चीज़ें सैलरी में से वो उनको पैसे देते हैं, बस आपका हमने यहाँ तो की रिपोर्ट दे दिया। तो इस का भी जो है रोकथाम होना चाहिए। एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं जो हमारे के में मौजूद है, उनको चाहिए कि वो ग्राउंड पे विजिट करें, क्योंकि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, आज भी जो मिनिस्टर साहब आए थे आमिर अब्दुल्ला, उसके साथ भी यही बात मैंने की कि आप लोग जब आ जाते हैं हमारे डीसी कंपाउंड शांत में, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन जो दी जाती है ऑल ओके रिपोर्ट दिया जाता है। एजुकेशन जो हमारी फीमेल एडीओ थी वो वहाँ पे मौजूद थी, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं वो सारे मौजूद थे, डीसी की मौजूदगी में मैं भी वहाँ थी। मिनिस्टर साहब से ग्राउंड की जो रियलिटी है वो सारी मैंने शेयर कर दी कि यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट आपके साथ पेश किया जाता है, जो ओके रिपोर्ट दिया जाता है कि ग्राउंड पे जो है सब कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें फंक्शनल है, एवरीथिंग ओके, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं जाते, आप यहाँ पे सिर्फ डीसी कंपाउंड आ जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि आप ग्राउंड पे विजिट करें, हकायक जो है वो आपके सामने उस तक आ जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ें मौजूद नहीं है। तो इसके मेन रीज़न जो है वो यही है कि हमारा जो जितना जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, हमारे जो लैंड डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे वजीरिस्तान में मौजूद नहीं है, वो वजीरिस्तान से बाहर दूसरे ज़िले में मौजूद है। तो सबसे पहले तो इनको वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो वजीरिस्तान में मौजूद होंगे, जैसे सर्वेकाई के जो एसी हैं वो सर्वेकाई में बैठ जाएंगे, लद्दा के जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो लद्दा में होंगे, सरारोगा के जो ऑफिसर हैं वो सरारोगा में होंगे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो लद्दा में या सरारोगा में अपने तहसील में मौजूद होंगी, तब भी उनको जो स्कूल हैं, जो बाहर से मिनिस्टर आते हैं उनके पास, वो भी ये सारी चीज़ें, ये हालात जो है ग्राउंड रियलिटी है वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे, और तभी ये हमारे जो स्कूल हैं, जो हमारे वजिस्तान के जो हालात हैं, तभी ये बेहतरी की जाने जा सकते हैं। जब तक हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो चांग जिले से अपने वजीरिस्तान जिला शिफ्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रजिया महसूद साहब, आपने बड़ी तफसीली जो है अपने इलाके के मसाइल, साउथ वजीरिस्तान के मसाइल का भी तज़किरा किया, और उसके साथ आपने उन मसाइल के हल के लिए जो तालीम है उसकी अहमियत पे जोर दिया। तालीम के जो स्कूलों के अंदर आपके ज़िले के अंदर साउथ वजीरिस्तान में जो मसाइल हैं जिसकी वजह से तालीम के असूल में हर बच्चे और बच्ची को अपना वो हक मिलने के अंदर जो रुकावटें हैं उनकी निशानदेही की, और जो हल आपने प्रपोज किया वो एक तो सिटीजन की तरफ है, जो आपके साउथ वजीरिस्तान के इलाके के जो शहरी हैं, जो खवातीन, मर्द खवातीन हैं जिस इलाके में रहते हैं, उनके इलाकों के अंदर अगर बच्चे स्कूल के अंदर
اساتذہ موجود نہیں ہے تو وہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. اور دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ جو حکومتی ادارے ہیں جیسے ایڈمنسٹریشن ہے، تعلیم کو چلانے والے جو محکمہ تعلیم ہے، اس کے افسران اپنے ضلع کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ کام ہو سکے گا. اور گوسٹ جو ٹیچرز ہیں، جو فرضی ٹیچرز ہیں، لائک ان کا وہاں پہ باسی ٹیچر تعینات ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہے، کسی اور جگہ رہ رہے ہیں لیکن جو ان کی تنخواہیں ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں، ان کی مانیٹرنگ کا جو کام ہے وہ تیز ہو، اور اگر وہ کام نہیں کر رہے تو ان کی تنخواہوں کو فریز کیا جائے. اسکولوں کے اندر سے ہی اور گھروں کے اندر سے ہی ہم نے احساس ذمہ داری بھی پیدا کرنی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوں، ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ اور اس کو اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہوں. چاہے کوئی بھی جو آپ کا مانیٹر ہے، آپ کا جو سپروائزر ہے، جس نے آپ کے کام کو وقتی طور پہ چیک کرنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن خداوند تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کام کے عوض جو رزق کما رہے ہیں اس کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے اپنے جو کام ہے، اپنے وقت کا بہترین حصہ وہاں صرف کریں تاکہ آپ کو اپنا سکون بھی میسر ہو سکے. سو میں باقی ساتھیوں کی طرف جانا چاہوں گی. آپ کا کوئی کمنٹ ہو، آپ کی کوئی تجویز ہو، آپ کا کوئی سوال ہو، رضیہ ہمارے ساتھ ہیں، پلیز ضرور پوچھیں ان سے. ہینڈ ریز کریں اور پوچھ سکتے ہیں. اور دو ساتھی ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں تھوڑی دیر پہلے سے، جیسے مختار شاہین صاحبہ میاں والی سے، وہ اور ان کی ساتھی دوسری ہیں، ان دونوں کو خوش آمدید. اسی طرح سے لاہور سے ہماری بہت ریگولر باقاعدگی سے ویبینار کو اٹینڈ کرنے والی ساتھی ہیں ہمارے ساتھ شمیم صاحبہ، ان کو بھی خوش آمدید. اور دیگر ساتھی جو بعد میں اگر آئے ہو، میں ان کا نام نہیں لے سکی تو آپ کو بھی اس ویبینار میں خوش آمدید. کوئی بھی سوال ہو تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. فضا، میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں جاننا چاہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے پہلے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہو جس نے پہلے بات نہ کی ہو. تھینک یو. فضا کمل صاحبہ کا ہینڈ ریز ہے، میں لیکن اس سے پہلے چاہتی ہوں کہ ایسی دئی رنوا خاتون کا ہینڈ ریز ہوئے، وہ بات کریں جنہوں نے پہلے ابھی تک بات نہیں کی. مجھے لگتا ہے سندھ سے ابھی تک کوئی بات نہیں آئی. بلوچستان سے فضا نے بات کر لی اور پنجاب سے بھی بات ہو گئی، لیکن سندھ سے اور خیبر پختونخوا سے ان کے اپنے علاوہ، رضیہ کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی. جی، آپ میں سے سندھ سے اور خیبر پختونخوا سے کوئی خاتون ساتھی ہمارے اس گروپ کے اندر ہے، بات کرنا چاہیں گی؟ یا وہ ساتھی جو آج پہلی بار اس میٹنگ میں آئی ہیں ان میں سے کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ پلیز ہینڈ ریز کریں، اپنے آپ کو ان میوٹ کریں اور بات کریں. جی فضا، آپ بات کیجئے جب تک باقی لوگ اپنے شاید سوال تیار کر رہے ہیں. جی ناہدہ، امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ کہ میں ایک ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں یہ جو مولوی وغیرہ ہوتے ہیں انہیں انوائٹ کیا گیا تھا. وہ تھا چائلڈ ایجوکیشن کے بارے میں، فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں. تو اس میں نا بہت ہی زیادہ نیگیٹو فیڈ بیک تھا. یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کا ماننا یہ تھا کہ خواتین کو ہائر ایجوکیشن نہیں حاصل کرنی چاہیے، انہیں صرف قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. یہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، پھر ان کی ڈیمانڈز ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اس سے شادی نہیں کرنی، اس سے شادی نہیں کرنی، یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے، ہم پرسنل چوائسیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں پریویل کرتی ہیں. ہمیں جو ہے ان کے یہ جو اسلامک سائڈ جو ہے اس کو بھی ہمیں فوکس کرنا ہوگا. ہمیں اس کے ساتھ مل کر ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جن سے ہم خواتین کی ایجوکیشن کو یقینی بنائیں، ساتھ میں ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ جس طرح ان کی چوائسیز ہوتی ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی عورتوں کے بھی بہت سارے حقوق رکھے ہیں، چاہے وہ پرسنل وہ میرج بائی چوائس ہو یا میرج یا ان کی ایجوکیشن ہو، یا اگر وہ آگے کام کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے. ان کی چوائسیز ہیں، اگر ان کی چوائسیز نہیں ہوتی تو ان کے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہی نہیں، ان کسی بھی طریقے کی فیلنگ سے وہ آ رہی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں، دماغ میں، زندگی میں فیلنگز ڈالی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں. یہ چیز سمجھنے کی اور سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بس مجھے یہ ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا تھا. تھینک یو. بہت اس شکریہ طریقے سے فضا. میں کچھ یہ جی رضیہ بات ہماری کریں. میں جو چاہتی تھوڑی دیر پہلے نبیلہ اسلم صاحبہ کا بھی ہینڈ ریز ہوا تھا. نبیلہ، خاص طور پہ ابھی جو فضا نے بات کی ہے میں چاہوں گی اس پہ
अब आप कैसे अपने काम के अंदर इस कंपोनेंट को ऐड कर रही हैं ऐसे लोगों तक रसाई, तो आप प्लीज जरूर बताइएगा। अभी हम रजिया से बात सुन लें। जी रजिया। जी जी जी, बिल्कुल। हमारी इस बहन ने जो बात की बहुत ही अच्छा इसने पॉइंट रेस किया है, क्योंकि ये चीज़ जो है कि अक्सर हमारे जो दीनी तबके के जो ऐसे लोग होते हैं, वो इस बात में रुकावट भी बनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि तालीम जो है वो सिर्फ दीनी अलूम ही ज़रूरी है, बाकी जो असली अलूम है या जो जदीद टेक्नोलॉजी है ये ख़वातीन पे इसका कोई हक नहीं है। जबकि इसको हम इस तरीके से लेकर जा सकते हैं कि दीनी अलूम से अबूर हासिल करना वो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहसीत मुसलमान अगर हमें अपने दीन का पता ना हो तो हम कैसे खुद को मुसलमान कह सकते हैं। दीनी अलूम के साथ साथ, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। मुकम्मल निज़ाम हयात मतलब पैदाइश से लेकर मौत तक कायनात में, पूरे कायनात में जितना भी कुछ हो रहा है वो सारा इस्लाम के अंदर है। साइंस जो है वो कुरान से निकला है, बाकी चीज़ें अगर हम हमारे पास हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो फिर वह हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये भी ना करें, ये बेच जाए। हम्म। ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम में ख़वातीन का जो किरदार है हमारा, इस्लाम जो है ख़वातीन के किरदारों से बड़ा भरा पड़ा है। तो हमारी ख़वातीन ने जो है फर्स्ट एड की जो सहूलियात है वो भी दी है मुख्तलिफ जंगों में, हमारी जो सहाबियात थी। और इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में बाकायदा खिलाफत में ख़वातीन उनके साथ शामिल होती थी। ख़वातीन को बाकायदा बाजारों का निज़ाम संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी तरह हज़रत खदीजा जो है वो पहली मुसलमान खातून की जो बिजनेस करती थी। इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इस्लाम में ख़वातीन के किरदारों को हम उजागर कर सकते हैं उस हवाले से, क्योंकि इस्लाम ने ख़वातीन को तमाम हकूक़ दिए हैं। वो अलग बात है कि हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कि नहीं हम्म। सिर्फ जो है वो शुक्रिया रजिया। शहजादे हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया रजिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस कंपोनेंट को कवर किया और मिसालें दी कि इस्लाम में भी खवातीन उस वक्त से कैसे खवातीन जंग से लेके और अमन से लेके जब जंग का या गजवात और थे तो वहां पे भी खवातीन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही थी। मैं हैंड रेज हुआ था अभी फयाज कौसर साहबा का मर्दान से। प्लीज फयाज आप बात कीजिए और फिर मैं नबीला असलम साहबा की तरफ जाना चाहूंगी, मैंने उनको होल्ड पे रखाया हुआ है कि वो जरूर बताएं। शीरी अख्तर घांचे साहबा ने लिखा है कि मुख्तियार शाहीन मैम बात करनी थी, हैंड रेज ऑप्शन की समझ नहीं आ रही। ओके मैडम, जरूर। रिएक्शंस का ना आप अपने उस पे देखें, रिएक्शंस का एक आता होता है नीचे बॉटम वाले जो मुख्तलिफ लाइनें आ रही है ना, स्टॉप वीडियो है आपका, म्यूट करते हैं उधर ही एक रिएक्शंस का पोर्शन आता है, वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन होता है। कोई बात नहीं, आप बात कर लें। फयाज कौसर है हमारे साथ। फयाज पहले आप बात करें फिर मैं उनकी तरफ जाती हूँ, मुख्तियार शाहीन साहबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्लीज अ, अपना तारुफ दीजिएगा, हो सकता है कुछ साथी आपको ना जानती हो। फयाज। जी, मेरा नाम फयाज कौसर है। केपी मतदान से मेरा ताल्लुक है। एजुकेशन पे बात हो रही है आज, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये जो तालीम है ये मर्द और औरत दोनों का एक सा हक है। लेकिन यहाँ जो जब बात आती है तालीम की और स्पेशली लड़कियों की या औरतों की, तो उसकी बहुत बड़ी वजूहात है। उसमें जो है सबसे बड़ा वजह आजकल के महंगाई है और गुर्बत है। बहुत सारे इलाकों में गुर्बत की वजह से बहुत सारी लड़कियां तालीम से रह जाती है। जैसे हमारे इलाके जो रूरल एरिया है वहां मैं जाती हूँ, तो वहां बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी एज तालीम की हासिल करने की तो नहीं होती, जवान होती है, लेकिन वो चाहती है कि वो पढ़े। तो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत रूरल लीडर के हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और हमें अपने गवर्नमेंट से ऐसी कोई प्रोजेक्ट के बारे में अपील करनी चाहिए कि जो लड़कियां या लड़के जो तालीम से रह जाते हैं, घरों में होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है, उनके लिए सेकंड टाइम में कोई मतलब कोई वो स्कूल खोलना चाहिए, या जो फीडर होम स्कूल होते हैं उनमें, या तालीम बालिगा का कोई प्रोग्राम इस तरह के स्टार्ट करने चाहिए। यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। जैसे
एक लड़की थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उनकी माली हैसियत इतना ज्यादा नहीं थी, तो हमने उनके लिए बुक्स हो गए, शूज और यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ, जितनी हमारी रूरल लीडर थी, हमने मिलके ना उनकी सारी चीजों का इंतजाम किया। इस तरह मेरे ख्याल में 4-5 लड़कियां थी। तो हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम प्रोग्रामों में बात करते हैं, सेशन करते हैं, उनमें तो हम आवाज उठाते हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर हम मैदान में आए, उनके लिए काम करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। आपने दो पहलुओं का तज़किरा किया। एक तो ये कि हमें उस दिन मसलों को हाईलाइट करना है एक जगह, और दूसरी तरह से खुद जहाँ जहाँ दही रहनुमा खवातीन है वो कैसे मिलके उनकी प्रैक्टिकली मदद भी करनी है, और मसले को हाईलाइट इसलिए करना है कि जो रियासत जिम्मेदार है उन सहूलियात को पहुंचाने की, वो उसके लिए कोई ऐसा हल निकाले जिससे तमाम बच्चे और बच्चियां तालीम के हक तक रसाई हासिल कर सकें। जी मुख्तियार शाहीन प्लीज बात कीजिए। मैडम अस्सलाम मुल्तान वालेकुम। है मियाँ वाली से, जी मैडम प्लीज। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैम वालेकुम आवाज आ अस्सलाम। रही? जी 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 मैम, बिल्कुल आ रही दो है। जी मैम, मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रही थी कि हम 2017 से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जेर तमाम एक एजुकेशन स्कूल अल नूर पब्लिक स्कूल कोट चांदना में चला रहे हैं। जब हम लोग 2017 में वहां पर गए तो वहां पे जो बच्चों का रुझान था तालीम का ना होने के बराबर था। हमने आवाज आगाही प्रोजेक्ट के जरिए वहां पे खवातीन को आगाही दी। खवातीन का वहां पे बच्चियों का शहूर और आगाही के हवाले से हमने उनमें कहा कि आप लोग बच्चियों की तालीम दिलवाएं। फिर उन लोगों की भरपूर डिमांड पर मैंने तालीम बालगा के 3 स्कूल वहां पे मंजूर कराए, जो आज तक वहां पे चल रहे हैं, और 3 टीचरें कोट चांदना की हायर की। फिर एक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जेर तमाम हम लोग स्कूल चला रहे हैं। लेकिन मैम एक इशू वहां पे ये है कि बच्चियों को 6 या 7 8 के बाद बच्चियों की एजुकेशन जारी नहीं रखी जाती। वही हमारे मियाँ वाली का जो देसी वो है कि कम उम्र की शादी आ जाती है, या तालीम की जो रुकावट है कि वहां तक यूनियन काउंसिल कोट चांदना जो है वहां पे मैट्रिक तक एक तो बच्चियों का स्कूल नहीं है, और जो वालदेन है उनके पास ट्रांसपोर्ट के इतना बजट नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि बच्चियों को आगे तालीम हासिल करने के लिए जलालपुर या उससे आगे कमर मशानी तक जाना पड़ता है, जिनसे बच्चियों को खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हम लोग को खवातीन की कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करें और उनको तालीम दे। हमारे उसमें ये था कि हमने तालीम में बारगाह के भी स्कूल स्टार्ट कराए, और साथ में एक छोटा सा स्कूल अपना भी बना लिया है पंजाब एजुकेशन का, जिसमें हम इस वक्त 210 बच्चियों और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मुख्तियार शाहीन साहिबा। आप थैंक यू। बहुत अच्छी मिसालें कम्युनिटी से लेके आती हैं और हमारे साथ शेयर करती हैं। बाकी साथियों का भी जी, सिर्फ हमारे पास 1 मिनट बाकी है। मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें, और नबीला असलम साहिबा काफी देर से मैंने आपको होल्ड पे मुझे रखा है, सिर्फ प्लीज आप बात कीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज ऐड करनी है। जी बोले। मुझे सिर्फ ये चीज ऐड करनी है कि हम देखें, एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है, और एज अ सिटीजन होने के नाते हम जो है वो जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है वो बहुत बहुत ही अहम है। अगर मैं इसके ऊपर एक बात करूं तो वो ये है कि हम हर जगह पे मर्द और औरत की बात करते हैं, लेकिन हम ख्वाजा सराउ यानी कि ट्रांस कम्युनिटी का कहीं पे भी जिक्र नहीं करते। तो एक मर्द और औरत के लिए तालीम जितना जरूरी है, ख्वाजा सराउ के लिए भी तालीम भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक मर्द और औरत के लिए। या जहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कैंप लगा है, या मतलब कहीं पे भी कोई चीज मेंशन करनी हो तो हम औरत का नाम या मर्द का नाम लिख देते हैं, लेकिन ख्वाजा सराउ को हम जो है वो उस चीज में नहीं लेके आते। तो मुझे ये लगता है, मुझे ये मेरा मानना भी है, और हमें जो है वो इस तरह करना भी चाहिए कि हमें हर अपने काम में जो है वो कोई भी मतलब राइट से रिलेटेड हो, आम कम्युनिटी का जितना हम हमारा एक औरत होने के नाते या मर्द होने के नाते इसके जितने भी राइट है, अगर हम 2018 के एक्ट को भी देखें जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर है, उनके भी वही हक है जो कि आम मर्द और औरत के एज अ सिटीजन पाकिस्तान होने के नाते हैं। बिकॉज मुझे पिछले 4-5 साल हो गए हैं मुझे ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर काम करते हुए, और मेरी ये हर्डली विश है कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है वो स्कूल अब ओपन करवा दिए हुए हैं, और हमारा काम जो है वो अभी इसके ऊपर ही है कि तो उनकी सिविक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर था।
जो कि मैं अलग आपसे जो है वो इसके बारे में डिस्कशन कर लूंगी। लेकिन मेन अभी अगर बात करूं आपसे एजुकेशन के हवाले से, तो काइंडली इस चीज को हर बंदा जो है वो रेज किया करे कि बहुत जहाँ पे शुक्रिया, इसको बहुत चाहिए ताकि शुक्रिया education अशमाल। वाली। मैं इसको, आपने जिस मसले को हाईलाइट किया मैं उसको एडमिट करती हूँ, और हम इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू के अंदर जरूर, जहाँ आप बच्चे और बच्ची की बात करेंगे वहाँ ख्वाजा सरा बच्चे और बच्चियों का भी जिक्र करेंगे कि उनका भी तालीम बुनियादी हक है, और उसको हम लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत राइट टाइम पे इसको हाईलाइट किया है। नबीला असलम साहिबा प्लीज। मैं जी सिर्फ एक ऐड बात करना चाहती हूँ कि जो हमारा आइन है और जो हमारे कवानीन हैं वो बिल्कुल हमारी जो मजहब की रूह है उसके हम आहंग हैं। तो जब हम अपने कवानीन की बात करते हैं और आइन की बात करते हैं तो वही हमारा एक सबसे बड़ा मजबूत सहारा है कि जहाँ से अ, हमारे सारे जो हकूक हैं उनके हवाले से तमाम प्रोसीजर्स बने हुए हैं। तो हमारे जो आइन है उसके अंदर है कि बच्चे और बच्ची के ऊपर 5 से 16 साल तक की जो तालीम है वो लाजमी है, और हुकूमत उसके लिए जो है वो इकदामात करेगी। तो उसके लिए ये कहना है कि जो कम्युनिटीज हैं उनको बार बार जो अरबाब इख्तियार हैं उनको लिखना चाहिए। एक पुरानी आदत होती थी हमारे बुजुर्गों की खत लिखने की अथॉरिटीज को। अथॉरिटीज को खत लिखें, बार बार लिखें कि हमारे इलाके में कॉलेज बनाएं या हमारे इलाके में जो है हाई स्कूल बनाएं। जैसे अभी मुख्तियार शाहीन ने बताया है, बार बार लिखें। अ, वो जो कतरा कतरा होता है ना कहीं असर जरूर डालता है। और जहाँ पर जो मजहबी लोग हैं जो वो बात करते हैं उसी के साथ बेशुमार कम्युनिटी ऐसी है जो कि कहती है कि हमारी बच्चियों को तालीम दें। अब वो वाला सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है ना इतना ज्यादा नहीं है। अब सर सैयद जो थे जब 18वीं सदी में बात कर रहे थे और इंग्लिश की बात करते थे और कहते थे कि आप अपनी तालीम हासिल करें, तो उस वक्त भी बेपनाह लोग उनके अपोनेंट थे, अभी भी लोग अपोनेंट हैं। लेकिन कम्युनिटी में जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं कई ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं, रोशन मिसालें हैं कि जहां पर वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस कदर तैयार हैं कि अगर नबीला आपका शायद माइक से आप दूर हो गई हैं, आपकी आवाज कट गई है। हमारे पास 2 वक्त की, तो हमें जो सबसे बड़ा हम जी हमारा जो आवाज सबसे, दरमियान से कट गई थी। हाँ जी, हमारा जो सबसे मजबूत हमारा पॉइंट है वो हमारा आइन है। तो उसी के यस। हवाले से बात करें, उसी को मजबूत करने की कोशिश करें। उसी में एजुकेशन का भी है, और जो मुख्तियार शाहीन है, वो जो मुतलका इदारे हैं वहां पर उनको खत लिखें उन लोगों को कि हमारे इलाके में जो है हाई स्कूल बनाएं। हाई स्कूल नहीं। उसके साथ हम लोग भी खत लिख सकते हैं अगर वो पिन पॉइंट करें, बहुत सारे लेटर जाएं वहां पर। वहां पे जो हाई स्कूल का मसला है वो हल हो, स्कूल होगा तो बच्चियां जाएंगी भी। और मेरा ख्याल है कि हम अनकरीब मुख्तियार के साथ जो है हो सकता है खत के हवाले से ही काम करना शुरू कर दें। लेकिन कम्युनिटी की अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि हमें निभानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नबीला असलम आपका और बाकी सारी साथियों का जिन्होंने बहुत अच्छी अपना जो काम के हवाले से, अपने शऊर के हवाले से जो मालूमात उनके पास थी वो बाकी सब तक पहुंचाई। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रजिया महसूद साहिबा का, आपने इतनी अहम जो अपने साउथ वजीरिस्तान के हवाले से जो मालूमात थी वो आपने रूरल वेमेन लीडरशिप अलायंस के साथ बाकी खवातीन तक पहुंचाई। अगर आप चैट चैप्टर में जाते हैं तो काफी सारी खवातीन ने, जैसे शीनी अख्तर घांचे जो कि गिलगित बल्तिस्तान से हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है वो मशवरा दिया हुआ है कि खवातीन टीचर्स को उनके घर के नजदीक स्कूलों में अपॉइंट करना चाहिए, ताकि मिडिल तक बच्चियों के स्कूल में खवातीन असातिज़ा होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां स्कूल आ सकें। और अहम बात जिसको हम सब ने लेके जाना है कि पाकिस्तान के आइन के जो मुख्तलिफ नकात हैं उनका हमारे काम के साथ क्या लिंक बनता है, हम उनको बुनियादी चीज लेके उसकी एडवोकेसी करें, खतूत लिखें। और यही हम दही रहनुमा खवातीन अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी के लोगों को सिखा भी रही हैं और खुद भी करना है हमें। बिल्कुल ये वही मिसाल है जो रजिया साहिबा ने स्टार्ट में दी कि बच्चियों ने स्लोगन उठा रखे थे, हम स्कूल में और असातिज़ा कराम घरों में, उस्तानिया घरों में।
سو اس مسئلے کو ہائی لائٹ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے کیا کہ ڈسٹرکٹ کو یا انتظامیہ کو ان لوگوں کو وہاں اساتذہ کو اپنے اسکولوں میں بھیجنا پڑا. سو یہی ایک آواز بلند کرنا، اور جو دیئی رہنما خواتین آواز بلند کرتی ہیں وہ بہت میچور ہوتی ہے اور پیچھے بہت گہرا تجزیہ ہوتا ہے اپنے حالات کا. تو پلیز اس کام کو جاری رکھنا ہے. اور اس سب کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اگلے ہفتے کے ویبینار تک کے لیے. پاکستان زندہ باد، اور آپ سب دیئی رہنما خواتین زندہ باد. خدا حافظ، اگلے ہفتے پھر ملیں گے. رضیہ آپ نے پلیز ہمیں ویڈیو لازمن شیئر کرتی ہیں، اور جو گفتگو آپ کر رہی تھیں اپنی کمپین کے حوالے سے، جن ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کرتی ہیں، کچھ آرٹیکلز اپنے گروپ میں ضرور شیئر کیا کریں جو خواتین سے متعلقہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اور زیادہ لکھاری ہمارے ساتھ. بسم اللہ ارم صاحبہ آلریڈی ایک لکھاری ہیں، آپ بھی ہیں، فضا کمل بھی ہیں، اور بہت ساری خواتین لکھاری جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.